Before we start off with the numericals, just give it a look quickly. See, can you see this equation? यहाँ पर A क्या है बताओ? We call this amplitude. What is amplitude? Maximum displacement means maximum value of y. Y का maximum value A हो सकता है, right? Why? Because the maximum value of any sine function is 1. Clear? So can you tell me what is A omega? What is this? What is this part? Of what? Amplitude of velocity. So this is called the velocity amplitude. This is called the velocity amplitude. This is called the velocity amplitude or the maximum velocity. Or the maximum velocity. Maximum velocity. That is the maximum velocity. Okay? So whenever they say maximum velocity of a simple harmonic motion is this, मतलब A omega है. Clear? Yes or no? Can you tell me what is A omega square then? Right. This is called acceleration amplitude. Acceleration amplitude or maximum acceleration. Acceleration amplitude और maximum acceleration. कौन सा? A omega square. अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिख लो अलग से. A omega square is acceleration amplitude और velocity amplitude क्या है? A omega. Clear? Clear to all of you? Now look at question number 1. क्या होता है बोलो? Question number 2. Question number 1. 1 everyone. Sachin 1. Question number 1. क्या दिया हुआ है? The maximum velocity of a body going SHM is 0.04 meter per second. मतलब A omega is equal to 0.04 meter per second. और क्या दिया हुआ है? And its acceleration at, listen to this very carefully. Acceleration at 0.02 from the mean position is 0.06. Now what is the formula for acceleration? Acceleration is equal to minus omega square y. See? From here, A equal to minus omega square y. Why did I take A equal to minus omega square y? Because they have mentioned acceleration at means this position is this value. So that means I need a relation between acceleration and displacement. That's why A equal to minus omega square y. Acceleration का value कितना दिया हुआ है? 0.06 is equal to minus omega square into 0.02. Now you say, how do you solve for minus? Omega square is coming out negative, right? So don't take the minus sign. This is because just for the magnitude. Just for the magnitude of the quantity. So you can say omega square equal to कितना? Omega square equal to 3? Yes or no? So omega equal to root 3. Alright? Now what do they want? Amplitude and the period of vibration. So देखो amplitude कहाँ से मिलेगा? ओमेगा यहाँ से निकल गया है. If you put this back value over here, so A into root 3 is equal to 0.04. So amplitude is 0.04 by root 3. Try not to keep any irrational numbers at the denominator. 0.04 root 3 by 3 meters. And how do you find out time period? 2 pi by omega, right? So this will be 2 pi by पण এটা जो rationalize করে নিলে 2 root 3 pi by 3 seconds. Yes, units is seconds. Clear? The second question I won't tell you. Solve it yourself quickly. Question number 2. वीरेंद्र यहाँ देखो, यहाँ देखो. मुंह वहां पर घुसा के रखने से सारा टाइम मोबाइल रखने से कुछ नहीं होगा. ये जो इक्वेशन देख रहे हो यहाँ पर, ये इक्वेशन में कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? बताओ कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? A एम्पलीट्यूड है और W, ये W नहीं है, ये ओमेगा है. इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं है. ठीक है. T is the time and delta is the initial phase, जिसको हम लोग epoch भी बोलते हैं. Initial, जिसको हम लोग EPOCH epoch भी बोलते हैं. ठीक है. अब
करेंगे क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक इक्वेशन, x इक्वल टू 5 साइन 4 पाई t प्लस 5/3 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या है निकालो, एम्पलीट्यूड क्या है निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो, एपॉक निकालो, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकालो, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा क्या है। एक्स और वाई सेम चीज रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है, 5 है, यहां पर क्या है, सो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, टेक ऐसा यूनिट्स फॉर एवरीथिंग, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ये ओमेगा जहां है यहां पर उसकी जगह में क्या है, समझ में आया, सो ओमेगा इज 4 पाई, सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। और लास्ट में t जहां है यहां पर भी t है, और लास्ट में क्या है, डेल्टा, और यहां पर क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू, समझ आया कुछ, आया ना। नाउ फर्स्ट एम्पलीट्यूड पूछा, देखो एम्पलीट्यूड निकल गया डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला t 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा कितना है, 4 पाई बाई 2 पाई, कैंसिल करते हैं, 2 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी, t इक्वल टू 1 बाई एफ, या t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो इट विल कम आउट टू बी 1 बाई 2, दैट इज 0.5 सेकेंड्स। ये हार्ड सोल्व, फ्रीक्वेंसी निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। अब क्या पूछा है, एपॉक। एपॉक क्या निकाले हैं हम लोग ऑलरेडी, राइट, ये एपॉक है, डेल्टा ही एपॉक है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, हाँ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज ए ओमेगा। ए है कितना, 5, और ओमेगा कितना है, सो 5 4 20 पाई मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट, सारा ऐसा यूनिट यूज करें हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, वो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। सो ए ओमेगा स्क्वायर मतलब 5 इंटू 4 पाई होल स्क्वायर, 80 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। 4 का हो गया लेकिन 3 नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो 3 हेल्प, 3 टेस्ट हो जा, 3 इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। 3 में देखो तो कौन कौन सा क्वांटिटी का रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा क्वांटिटी का रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। कौन सा रिलेशन यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है, राइट, ये वाला, राइट। तो इसका स्क्वायर वाला फंक्शन ये है, दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दिस सम। क्वेश्चन नंबर 3 में we'll use this formula, v square equal to omega square a square minus y square. Why? Because they have given you relation between displacement and velocity. Yes or no? Yes sir. अब velocity में क्या दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है कि if the velocities at distances 4 and 5 are 13 centimeter, means when y is equal to 4, v is equal to 13. ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। कैसे, देखो y के जगह में डालेंगे वैल्यू, v के जगह में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोग को, 13 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इक्वेशन 1।
और सेकंड इक्वेशन मिलेगा 5 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, दिस इज इक्वेशन 2। समझ में आया? अब निकालने क्या बोले हम लोगों को, फाइंड द पीरियड, टाइम पीरियड एंड द एम्पलीट्यूड। सो ऑब्वियसली टाइम पीरियड के लिए ओमेगा चाहिए और ए चाहिए, तो पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। सो इफ वी डिवाइड देम, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिलेगा हम लोग को, 169 into 25 কত? बाद में 6.7 नहीं मत करो और भी इजी हो जाएगा। 169 माइनस 25, 25 ए स्क्वायर होगा नहीं। सो 25 मतलब 169 माइनस 25 কত? 144 ए स्क्वायर। আর এটা ওদিকে নিয়ে গেলে 25 टेकन कॉमन 169 माइनस 16, हाँ या ना? सो 25 ইনটু এটা কত হচ্ছে 16, 154 का स्क्वायर है ना गद्दारी कर दिया एकदम। এটা কি একটা অদ্ভুত আছে ও 153 হবে না, সরি 153 হবে তাই তো। कौन बोला था তাহলে দিস ইজ অ্যামপ্লিটিউড। তাহলে এই অ্যামপ্লিটিউডটা যে কোনো একটা ইকুয়েশনে পুট করে দাও, ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ ওমেগা। ঠিক আছে, solve for omega, then time period is what, 2 pi by omega। ठीक है, तो पहले we have to find out the omega, सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा का वैल्यू निकलेगा, ओमेगा का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। यस और नो? यस सर गो फॉर द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 টা একবার চেষ্টা করো। কি বলেছে हम लोग सम पढ़े, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या रिलेशन? दो डिस्टेंस में वेलोसिटी कितना है वो दिया हुआ है, राइट? सो वेलोसिटी सेम नहीं है, पढ़ो प्लीज। दो अलग अलग पोजीशन में दो अलग अलग वेलोसिटी, हाँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों को दो सिचुएशन दिया हुआ है जहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला चाहिए जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। तो यही एक फॉर्मूला है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है, इसको स्क्वायर करके ही ये आएगा। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं। तो एक जब डिस्प्लेसमेंट 4 था तब वेलोसिटी, तो ये डालने से फर्स्ट इक्वेशन निकलेगा, फिर सेकंड इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। Well, now look at question number 4. Question number 4 says the maximum acceleration of a particle in SHM is given. So you know maximum acceleration is omega square a. A omega square is equal to 98.7 centimeter per second square. This is equation 1. Its time period is 2 seconds. Time period is 2 seconds. Implies what? 2 pi by omega is equal to 2 seconds. So omega is equal to pi. And then they are saying that initial displacement of the particle is 5. Means at t equal to 0, y is equal to 5. This is given. Initial displacement का मतलब है t equal to 0 में y का वैल्यू क्या है? Clear? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल को बनाने बोले हैं, मतलब ये हम लोगों को फ्रेम आउट करना है। अब याद है इक्वेशन मतलब क्या, वहां पर y और t रहना ही पड़ेगा,
लेकिन बाकी जितना भी कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स का वैल्यू हम लोगों को निकाल के डालना पड़ेगा उधर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट चीज ओमेगा तो मिल गया है, अब ओमेगा का वैल्यू इधर डालेंगे तो ए मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। a इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 98.7। Now pi consider it to be 3.14. क्या क्या क्या? 9.87, राइट। इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, 98.7 by 9.87 will be 10। समझ में आया? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है 9.87। So सेंटीमीटर। बुझा सर? So this will be 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड विल बी 10 सेंटीमीटर। तो देखो a निकल गया हम लोगों का, ओमेगा तो ऑलरेडी दिया हुआ है 5। अब बारी है डेल्टा निकालने का। कैसे निकालेंगे? ये वाला देखो, विल से लेट द इक्वेशन इनिशियल का मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब है जब t 0 होगा तब y का वैल्यू, हाँ या ना? श्रद्धा समझ में आ रहा है? So let the equation of किसका इक्वेशन? SHM be y is equal to a sin omega t plus delta, that is y is equal to a का वैल्यू निकल गया 10 sin omega, omega is pi t plus delta, we don't know delta, ठीक है। डेल्टा हम लोगों को पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? ये जो डेटा दिया हुआ है हम लोगों को, ये डेटा हम लोग यहाँ पुट बैक करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ pi/6 राइट पुट बैक करके डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। सो y का वैल्यू कितना है बोलो? तब t का वैल्यू, सो 5 इज इक्वल टू 10 साइन 0 प्लस डेल्टा, 0 प्लस डेल्टा मतलब डेल्टा। अब देखो 5/10 करेंगे तो कितना आएगा? हाफ इक्वल टू साइन डेल्टा। साइन कितना डिग्री हाफ होता है? 30, मतलब pi/6। pi/6 इक्वल टू साइन डेल्टा, मीन्स डेल्टा इक्वल टू pi/6। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन is y equal to 10 sin pi t plus pi/6. That is the required equation. Was that clear? Yes sir।